Good morning, my cute filthy study buds. So, as our English exams are tomorrow, I know that you guys must be wondering from where to start and what to do. So, let's study this chapter because it's little big too, and you might be feeling very tedious to do this chapter. So, let's do this chapter together. So, it's Poets and Pancakes. Ashoka Mitran, a Tamil writer, recounts his years at Gemini Studios in his book My Years with Boss, which talks of the influence of movies on every aspect of life in India. The Gemini Studios, located in China, was set up in 1940. It was one of the most influential film producing organizations of India in the early days of Indian filmmaking. Its founder was S.S. Vasan. The duty of Ashoka Mitran in Gemini Studios was to cut out newspaper clippings on wide variety of subjects and store them in files. Many of these had been written out by hand. Although he performed an insignificant function, he was the most well informed of all members of the Gemini family. The following is an excerpt from his book My Years with Boss. So when we are going to notice these words and expressions in the text and for their meanings from the context, so like terms like blew over, so like focusing on these terms, so we have the first one as blew over, which means passed away without doing much harm. Means though much harm was not done, it was like avoided. So I think it's better if we can do these words when we get in the extract. So let's move forward. So pancake was a brand name of the makeup material that Gemini Studios bought in truckloads. So, like, first we can know about this. So, this author was Ashoka Mitran, and his book was My Years with Boss. And of that thing, or from that book, this extract is taken out. And this Gemini Studios was located in China. It was set in 1940, and its founder was S.S. Vasan. तो मेन चीज़ बस इसमें थोड़ा सा ऑथर के बारे में जानने के लिए इतना एनफ है. एंड अशोका मित्रन करता क्या था, तो न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स काट के अपनी बुक में वो लगाता था. उसे बहुत ही इनसिग्निफिकेंट वर्क माना जाता था उसके वर्क को, लेकिन मतलब कि सबसे ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड वहाँ पे स्टूडियो में सिर्फ वही था. अब नेक्स्ट हम जब बात करते हैं अपने यहाँ से स्टार्ट, द पेनकेक वाज अ ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल दैट जेमिनी स्टूडियोज bought in truckloads. Greta Garbo must have used it. Miss Gohar must have used it. Vaijayanti Mala must also have used it, but Rati Agnihotri may not have even heard of it. तो यहाँ पे मैं कुछ एक्ट्रेसेस का नाम मेंशन किया गया है, तो लाइक इतना तो इम्पोर्टेंट है नहीं, पर ओके देखो पढ़ लेते हैं. स्वेडिश एक्ट्रेस तुम्हारी ग्रेटा गार्बो कौन है? A Swedish actress in 1954, she received an honorary Oscar for her unforgettable screen performances. The Guinness Book of World Records named her the most beautiful woman who ever lived. Oh my god, I must also see her then. See, nothing. She was also voted best silent actress of the country. That's great. And next is about whom? Second, yeah, Vaijayanti Mala, and Indian actress whose performance was widely appreciated in Bimal Roy's Devdas. She won 3 Best Actress awards for acting. She is now an active politician. That's great. So like these are the like main princes. I'm saying. Actress and actress's name, so we can remember to put this in our answer. And you should also remember the Ashoka Mitran's name, because it can also help in writing long answers and also to conclude some points. The now next we are moving. The makeup department of the Gemini Studios was in the upstairs of a building that was believed to have been Robert Cleve's stables. A dozen other buildings in the city are said to have been his residence. तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हम लोग जो ये बात कर रहे हैं, तो जो हमारे उस वक्त तो 1940 में ब्रिटिश लाइक उसका था राज, तो फिर वही चीज़ रॉबर्ट क्लिव का जो स्टेबल जहाँ पे घोड़े वगैरह का रखा जाता है, तो वहाँ पे ऊपर की तरफ उन लोग का क्या कहते हैं मेकअप डिपार्टमेंट था. द से टू हैव हिज रेसिडेंस फॉर हिज ब्रीफ लाइफ एंड इवन ब्रीफर स्टे इन मद्रास. रॉबर्ट क्लीव सीम्स टू हैव डन ए लॉट ऑफ मूविंग besides fighting some impossible battles remote corners of India and marrying a maiden in St. Mary's Church in Fort St. George in Madras. The makeup room had the look for a hair-cutting salon with lights at all angles, around half a dozen large mirrors. They were all incandescent lines, so you can imagine the fiery imagery of those subjected to a makeup.
सो यू कैन इमेजिन द फियरी मेजरी ऑफ दो सब्जेक्टेड टू मेकअप। तो जिनको मेकअप लेते उनकी फियरी मेजरी होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनकेंडेंसेड लाइन जो बहुत गर्मी देते थे, और लाइक इतने मिरर्स, सो इट वॉज वेरी हैक्टिंग एनवायरनमेंट इन दैट प्लेस वेयर दे हैड देयर मेकअप्स ऑन देयर फेसेस. So the makeup department was first headed by Bengali, who became too big for a studio and left. He was succeeded by Maharashtrian, who was assisted by Dharwar, Karnataka, and Andhra, a Madras Indian Christian, and an Anglo-Burmese, and the usual local Tamils. तो मतलब बंगाली भी आए, महाराष्ट्रियन भी आए, आंध्र भी आए, लोकल तमिल्स भी आए. तो इन सब ने मेकअप का जो वर्क है उसे संभाला. All this shows that there was a great deal of national integration long before AIR, All India Radio, and Doordarshan began broadcasting programs on national integration. तो ये हमें पता चलता है कि बहुत ही ज़्यादा नेशनल इंटीग्रेशन पहले से स्टार्ट हो गया था. यूनिटी वाली चीज़ स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि आप देख सकते हो कितने जगह जगह के लोग यहाँ पे मेकअप के लिए आते थे, करने के लिए आते थे. This gang of nationally integrated makeup man could turn any decent-looking person to hideous crimson hood monster with help of truckloads of pancake. तो ऐसा लगता था कि यहाँ पे जो भी आ रहा है उसे अच्छे खासे भले इंसान से एक मॉन्स्टर बना दिया जा रहा है. इतना मेकअप उनके चेहरे पे लगा दिया था. लाइक इट वाज लाइक nowadays the tantrums like tones are going on, like when we apply the makeup, so you look dash like. So avoiding it all, we are moving on the help of truckloads and number of other locally made potions and lotions. Those were the days of mainly indoor shooting, and only 5% of the film shot outdoors. I suppose the sets and studio lights need the girls and boys to be made to look ugly in order to look presentable. तो उन्हें ऐसा लगता था कि फिल्म लोगों को अगली बना के फिर उसके बाद ही वो प्रेजेंटेबल लगता है मूवी के लिए. A strict hierarchy was maintained in the makeup department. The chief makeup man made the chief actors and actresses ugly. His senior assistant the second hero and the heroine. जो चीफ मेकअप मैन था वो पहले चीफ एक्ट्रेस एक्ट्रेस को अगली की बदसूरत बनाता था. उसका जो सीनियर असिस्टेंट होता था वो हीरो हीरोइन को, जो सेकंड लीड होते हैं ना, ठीक है, और जूनियर असिस्टेंट क्या करता था, मेन कॉमेडियन को बनाता था अगली. द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड उसको ऑफिस बॉय संभालता था. इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जर्मनी हैड एन ऑफिस बॉय. मीन्स लाइक इतना मेकअप डिपार्टमेंट में किसी ऑफिस बॉय की जरूरत पड़ती है, इतनी छोटी सी तो जगह है, अपने आप हैंडल हो सकती है. यहाँ पे भी ऑफिस बॉय है. ऑन द डेज व्हेन देयर वाज अ क्राउड शूटिंग, यू could see him mixing his paint in a giant vessel and slapping it on the crowd players. Means he was not at all polite with his work. He would just like do it for formality, you can say. The idea was to close very pore on the bare surface of the face in the process of applying makeup. He wasn't exactly a boy. Means like हम लोग कह रहे हैं ना ऑफिस बॉय, लेकिन वो एक कोई बॉय नहीं था. He was a grown up. He was in early 40s. Having entered his studio years again, the hope of becoming star actor, top screenwriter, director, lyrics writer, he was a bit of poet. मतलब सब कुछ बनना ही चाहता था वो, लेकिन बन के क्या रह गया, ऑफिस बॉय. तो चाहने से कुछ नहीं होता भाई, वर्क करना पड़ता है. In those days, I worked in his cubicle, two whole sides of which were French windows. I didn't know that French windows. Sitting at my desk, reading newspapers day in and day out. Most people thought I was doing next to nothing. It's likely that boss thought likewise too. और boss को भी ऐसा लगता था कि मैं कुछ नहीं कर रहा, newspaper clippings ही तो कट करता हूँ. So anyone who felt that I should be given some occupation would barge into my cubicle and deliver an extended lecture. तो जिसे भी लगता था मैं कुछ काम नहीं कर रहा, तो वो आता था मेरे कैबिन के अंदर, मुझे सुना के चला जाता था. The boy in the makeup department decided I should be enlightened and how great literary talent was being allowed to go wasted. Department fit only for barbers and perverts. So यहाँ पे ये कहा गया था कि जो ऑफिस बॉय है वो उसके कैबिन में आता है और उसे बताता है कि कैसे ग्रेट लिटरेरी टैलेंट, इतना टैलेंटेड इंसान का टैलेंट जो है तो वेस्ट जा रहा है ऐसी जगह पे जहाँ पे सिर्फ बार्बर्स और पर्वर्स ही होते. Soon I was praying for a crowd shooting all the time. Nothing short of it could save me from his epics. तो मैं हर वक्त यही सोचता था नरेटा कि जल्दी से क्राउड शूटिंग का टाइम आए और ये जाए उन्हें मेकअप लगाना, उन्हें बदसूरत बनाना है, नहीं तो उसके अलावा मुझे इससे कोई नहीं बचा सकता. In all instances of frustration, you will always find the anger directed towards a single person openly or covertly. तो जब भी उसे गुस्सा आता था वो या तो खुले या तो फिर ऐसे ही मतलब इतना डायरेक्टली ना कह के भी उसका सारा गुस्सा सिर्फ एक ही इंसान पे निकलता था. उसका नाम था कोथामंगलम सुब्बू, ठीक है. एंड दिस मैन ऑफ मेकअप डिपार्टमेंट वाज कन्विंस्ड दैट ऑल हिज वोज इनकॉनमी, जो वोज उसकी जो ग्रेट जो उसका सॉरो है, इग्नोमिनी जो उसकी क्या कहते हैं पब्लिक शेम जो भी उसे मिलता है, वोज इग्नोमिनी एंड नेग्लेक्ट वर ड्यू टू कोथामंगलम सुब्बू. तो ऐसे जो वर्ड्स है ना, वोज इग्नोमिनी, सो दीज आर वेरी गुड वर्ड्स. यू कैन हाईलाइट इट सो दैट फॉर बोर्ड्स यू कैन गेट एक्स्ट्रा मार्क्स. सुब्बू वॉज इन
Number two, at Gemini Studios, he couldn't have had a more encouraging opening in films than our grown-up makeup boy had. तो जो हमारा सुबु है उसको कोई encouraging opening in films than our grown-up makeup boy, तो उसको इतना encouraging opening कितनी लाइक इतना होता है ना, जैसे हम लोग कोई चीज़ स्टार्ट करते तो हमें जितना सपोर्ट मिलता है तो उतनी सपोर्ट उसे क्या कहते हैं ऑफिस बॉय को नहीं मिली जितना कि हमारे सुबु को मिली थी. So on the contrary, he must have had a face more uncertain and difficulty time for when he began his career. There were no formally established film producing company or studios. Even the matter of education, especially for me, Subbu couldn't have had an applicable lead or तो हमारे जो सुब्बू को उसको तो और ज़्यादा दिक्कत होनी ही चाहिए क्योंकि उस वक्त हमारे कितना फॉर्मल एजुकेशन की इवन द मैटर उसमें उसका इतना अच्छा नहीं था फॉर्मल एजुकेशन की मैटर में और ना ही उस वक्त इतने करियर के ऑप्शंस अवेलेबल थे. सुब्बू कुडंट हैव एन अप्रिशिएबल लीड ओवर अवर बॉय. जो ऑफिस बॉय था उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा और ज़्यादा नोन मतलब कि हर चीज़ में लाइक माहिर था वो, बस उसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली. बट बाई वर्च्यू ऑफ बीइंग born a Brahmin or virtue indeed, लेकिन वो ब्राह्मण पैदा हुआ था. ही मस्ट हैव एन एक्सपोजर टू मोर एफ्लुएंट सिचुएशन, इसलिए उसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें देखने को मिली ऑफिस बॉयज़ के मुकाबले. एंड पीपल ही हैड द एबिलिटी टू लुक चीयरफुल एट ऑल टाइम्स. उसे हर वक्त खुश दिखने की ऐसी एक आदत सी हो गई थी, तो मतलब वो हमेशा खुश दिखता. ही हैड द एबिलिटी टू लुक चीयरफुल इवन आफ्टर हैविंग हैड ए हैंड इन फ्लॉप फिल्म. भले इसकी फिल्म फ्लॉप हो जाए लेकिन तब भी वो खुश रहता था. ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी. ही कुड नेवर डू थिंग्स ऑन हिज ओन. मतलब कि वो खुद से कोई काम ही नहीं करता, वो कुछ ना कुछ किसी को काम थमा देता था. बट हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी मेड हिम आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद हिज प्रिंसिपल कम्प्लीटली. पर वो लॉयल चाहता था इसलिए, और क्या कहते हैं जो हमारे जो मेन तो वो बहुत लॉयल था एंड टर्न हिज एंटायर क्रिएटिविटी टू हिज प्रिंसिपल्स एडवांटेज. तो वो क्या कहते हैं उसकी जो लॉयल्टी थी उसकी प्रिंसिपल पे कम्प्लीटली कि लाइक जो हमारा सुब्बू है वो हमारा एक ऐसा पर्सनैलिटी है जो कि कुछ भी सोच सकता है. तो फिर वो जो भी है उसकी जो क्रिएटिविटी है उसकी वो सारी लगा देता है फिल्म में. जब किसी ही वजह टेलर मेड मतलब एकदम परफेक्टली सूट था वो फिल्म के लिए, क्योंकि वो आइडियाज़ बहुत अच्छे थे. जैसे कि हमें कोई आइडिया नहीं आ रहा है किसी भी डायरेक्टर के हमें ये सीन कैसे करना चाहिए, तो सुब्बू वुड लाइक ब्रिंग bunch of ideas that were so good to the here we go that here was a man who would be inspired when combined. The rat fights the tigress underwater and kills her but takes pity on the cubs and tends them lovingly. I don't know how to do the scene, the producer would say, and so would come up with 4 ways of rat powering affection on its victims of spring. Good, but I'm not sure it is effective enough, the producer would say in a minute. Subbu would come out with 14 more alternatives. So like this he was like he would bring ideas and so much of ideas it would require for a filmmaking industry, and that's why he was perfectly suited, and also his loyalty towards, and also he was Brahmin. So there were many things that brought him an advantage in the filmmaking industry. So filmmaking must have been and was so easy with a man like Subbu around, and if there was a man who gave direction and definition to Gemini Studios during its golden year, it was Subbu. तो अगर फिल्म मेकिंग देखो उसके साथ बहुत ही ईजी, क्योंकि आइडियाज़ आसानी से उससे बोल दो, बस नहीं समझ आ रहा तो वो बता देता था. और इसलिए जो गोल्डन ईयर्स चल रहे थे फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री के, वो सुब्बू की ही डायरेक्शन और डेफिनेशन उसे सुब्बू ही उसे डायरेक्शन डेफिनेशन दे रहा था. So this line is also very good like to be placed in boards like if there was a man who gave direction definition in Gemini Studios during its golden, it was Subbu. Subbu had a separate identity as a poet, and though he was certainly capable of more complex and higher forms, he deliberately chose to address his poetry to the masses. So जबकि वो बहुत ही simple like और हायर फॉर्म ऑफ पोएट्री कर सकता था, पर वो इतना नहीं करता था. हिज सक्सेस इन फिल्म्स ओवरशैडोड एंड डॉप्ड हिज लिटरेरी अचीवमेंट्स और सो हिज क्रिटिक्स फेल्ट. तो उसकी जो क्या कहते हैं उसने इतनी ज़्यादा फिल्म मेकिंग में थोड़ी इतना बना लिया अपना ऑरा, यू कैन से दैट उसने ये लिटरेरी वर्क्स को इतना ध्यान नहीं दिया, तो उसका उसमें जो रुचि था वो भी लाइक अब नहीं रहा. ही कंपोज सेवरल ट्रूली ओरिजिनल स्टोरी poems in folk, refrain and diction. Also wrote a sprawling novel Thilana Mohanambara. तो उसने बहुत सारे लाइक स्टोरी पॉइंट्स लिखे जो कि could go like folk, refrain and diction. Also a sprawling novel
थिलाना मोहनमला उसने लिखी विद डजन्स ऑफ वेरी डेफ्टली एज्ड मीन्स लाइक इट स्प्रेड ओवर लार्ज एरियाज कैरेक्टर्स में कैरेक्टर्स हर तरफ से फैले हुए थे. ही क्वाइट सक्सेसफुली रिक्रिएटेड द मूड एंड मैनर ऑफ द देवदासीज ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी. तो उसने ऐसा मूड जो भी मैनर था जैसे कि देवदासीज में होता था 20th सेंचुरी में अर्ली, तो वैसा इसने अपनी नोवेल में भी ऐसे रखा थिलाना मोहनमला में. ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर. ही नेवर एस्पायर्ड द लीड रोल्स बट वॉट एवर सब्सिडी ही प्लेड इन एनी ऑफ द फिल्म्स ही परफॉर्म बेटर देन द सपोज मेन प्लेयर्स. मतलब मेन प्लेयर्स जो तो उनसे भी ज़्यादा अच्छा, मतलब कि एकदम उसकी फिल्म मेकिंग इतनी अच्छी थी. उसने नोवेल लिखा, पोएम लिखी और लाइक उसके लिटरेरी अचीवमेंट्स भी थे. डायरेक्शन डेफिनेशन भी प्रोवाइड करता था अपनी आइडियाज़ से. तो ये सब उसकी लाइक बहुत अच्छी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि उसे बहुत एडवांटेज लाई. बट वट एवर सब्सिडी ही प्ले तो उसमें बहुत अच्छा रहता था. एंड ही हैड ए जेन्युइन लव फॉर एनी वन ही केम अक्रॉस इन हिज हाउस वॉज ए परमानेंट रेसिडेंस फॉर डजन्स ऑफ नियर एंड फार रिलेशंस एक्वेंटेंसेस. और उसका घर हमेशा सबके लिए खुला रहता था कि बहुत उसके दोस्त सब कुछ ऐसा रहता था. तो बहुत ही फ्रेंडली इंसान था सुबह, हमें ये पता चलता है. और लॉयल तो था ही जैसे हमें पता है. It seemed against Subbu's nature to even consider that he was feeding and supporting so many of them. और सुब्बू का नेचर तो ऐसा था कि वो ऐसा करता कि अच्छाई की और हमने खाए में डाल दी, वो जो भी होता है, ठीक है. तो उसके साथ ऐसा ही था. तो he was like, he never noticed that I supported so many of them, I was feeding so many of them. He didn't pay attention to that thing and he was just lost in what good deeds he did. Such a charitable and improvident man and yet he had enemies. Means like कितना charitable, charity करने वाला इंसान है. Improvident means like improvident means what it doesn't, okay. And he yet उसके enemies से was it because he seemed so close intimate with the boss or was it a general demon that resembled his sycophants. तो ऐसा क्यों था कि बॉस से वो ज़्यादा करीब दिखता था, या ऐसा था कि वो अच्छा बिहेव इसलिए करता था ताकि वो बॉस से कुछ फ़ायदे ले सके, क्या है. और इस रेडीनेस उससे नाइन थिंग्स अबाउट एवरीथिंग, या वो हर चीज़ के बारे में कुछ अच्छा कह देता था, सबसे फ्रेंड देता था. ये उसकी गलती थी, क्या उसकी गलती जो उसे एनिमीज देती थी. ऐसा ही होता है भाई, अच्छे इंसान के सबसे ज़्यादा दोस्त होते हैं, सॉरी दुश्मन होते हैं. इन एनी केस देयर वाज दिस मैन इन द मेकअप डिपार्टमेंट हु वुड विश द डायरेस्ट थिंग्स फॉर सुब्बू. तो ऐसा इस केस में ये था कि जो मैन था मेकअप डिपार्टमेंट में वो सुब्बू के लिए बहुत ही बुरी चीज़ें चाहता था. लाइक आई डोंट नो व्हाई बट ही वाज लाइक दैट. इसलिए जो भी दूसरों का बुरा चाहता है उनके साथ कभी अच्छा नहीं होता. तो आप भी सबका अच्छा चाहो, सबका अच्छा करो, सब कुछ अच्छा होगा. आई थिंक पॉजिटिव, आई कांट से एनीथिंग एल्स टू. He saw Subbu always with the boss, but in the attendance roles, he was grouped under a department called the story department. तो सुब्बू हमेशा बॉस के साथ दिखता था, पर वो बॉस के साथ ऐसे काम ऐसे पीए नहीं था उनका. वो स्टोरी डिपार्टमेंट में काम करता था. Story department comprising a lawyer and an assembly of writers and poets. The lawyer was officially known as a legal advisor, but everybody referred to him as the opposite. An extremely talented actress who was also an extremely temperamental, means like उनको गुस्सा ज़्यादा आता था. Once blew over on the sets while everyone stood stunned. The lawyer quietly switched on the recording equipment when the actress paused for breath and lawyer said to her, "1 minute please," and played back the recording. There was nothing incriminating or unmentionably foul about the actress' tirade against the producer, but when she heard her voice again through the second sound equipment, she was struck down. तो ऐसा हुआ था कि वो बहुत ही गुस्से वाली एक्ट्रेस थी, तो किसी प्रोड्यूसर पे किसी बात को लेकर चिल्ला रही थी. अब सब लोग शांति से खड़े होकर सुन रहे थे कि वो बहुत गुस्से में थी. तो फिर क्या हुआ थी, उसी वक्त हमारे लॉयर ने अपना जो साउंड इक्विपमेंट है, रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट, उसे ऑन कर दिया. फिर उसकी वॉइस रिकॉर्ड हो गई. तो जब उसने उसे प्ले किया, जब सांस लेने के लिए एक्ट्रेस रुकी, तब उसने जब उसे प्ले किया तो उसमें ऐसा कुछ गलत तो था नहीं इतना कि उसे गिल्टी फील हो या कुछ ऐसे मेंशन करना जैसे कि जो कि ज़्यादा गलत हो. जब उसने इतनी बड़ी एंग्री स्पीच दी थी, लेकिन जब उसने अपनी आवाज़ सुनी, she was struck dumb. A girl from the countryside, she hadn't gone through all the stages of worldly experience that generally precede a position of importance. तो वो कंट्री साइड से आई थी, उसने सारे जो लेवल्स है उसमें उससे वो नहीं होके गुजरी थी, जो कि पहले एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे आके गुजरना होता है, वो नहीं गुजरी थी. शी वॉज डायरेक्ट लाइक सो गुड एट एक्टिंग दैट शी रीच्ड दैट पोजीशन. शी वॉज वेरी टैलेंटेड बट एंड सोफिस्टिकेशन दैट शी हैड फाउंड हरसेल्फ कैटापुलेटेड इनटू. जिसमें वो फंस गई थी जिस सिचुएशन में, वो उसे नहीं फेस की थी पहले. शी नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर शी फेल्ट दैट डे. उसे
डर लग गया खुद की आवाज़ से. That was the end of a brief and brilliant acting career. The legal advisor, who was also a member of the story department, had unwittingly brought about that sad end. और ये हुआ किसकी वजह से? वो लीगल एडवाइजर, लॉयर की वजह से. कितना गंदा इंसान था ना वो. So where are we? While every other member of the department wore a kind while every other member of the department wore a kind of uniform khaki dhoti with a slightly oversized and clumsily tailored white khadi shirt, the legal advisor wore pants and tie and sometimes a coat that looked like a coat of mail. तो like सब लोग खादी धोती पहनते थे पर वो कोट पहनता था, इतनी सी बात है. ठीक है. Often he looked alone and helpless, a man of cold logic in a crowd of dreamers. तो एक man of cold logic, इसका लाइक उसका होता है ना कोल्ड पर्सन, एकदम गुस्से में, मतलब कुछ बोलते भी नहीं, गुस्से में भी नहीं होते, बस शांत एकदम. लगता है कि जैसे गुस्सा ठंडा हो गया, मतलब ठंडा भी वैसे हो गया कि जैसे जम गया उनके अंदर, हट ही नहीं रहा. अब पता नहीं कैसे डिस्क्राइब करूँ, पर हाँ, अब मैंने कोल्ड लॉजिक इन क्राउड ऑफ ड्रीमर्स, मतलब कि सब लोग ड्रीम कर रहे हैं, वहाँ पे उसका कोल्ड लॉजिक चल रहा है. और न्यूट्रल मैन इन असेंबली ऑफ गांधी ट्रीज एंड खादी, और वो एक न्यूट्रल मैन है. इतने सारे गांधी ट्रीज मीन्स लाइक गांधी जो वर्शिप करते हैं, गांधी वर्शिप और खादी वर्शिप, लाइक सो मेनी ऑफ दीज वर क्लोज टू बॉस. ही वाज अलाउड टू प्रोड्यूस ए फिल्म एंड दो lot of raw stock and pancake were used on it. Like so many of those who were close to the boss, he was allowed to produce a film, and though a lot of raw stock and pancake were used, not much came of the film. Means like जो भी हमारे बॉस के पास थे उनको ऐसा अलाउ कर दिया कि आप फिल्म प्रोड्यूस कर सकते हैं, पर जो उन्होंने लॉयर ने फिल्म प्रोड्यूस की उसमें उन्होंने बहुत सा पैनकेक, बहुत सी चीज़ें यूज़ तो की, पर उससे ज़्यादा इनकम नहीं हो पाई. Then one day the boss closed down the story department, and this was perhaps the only instance in all human history there where a lawyer lost his job because the poets were asked to go home. तो वही होता है कि जिसके तुम अगर दूसरे से गलत, तुम्हारे साथ गलत होगा तो फिर लाइक यहाँ पे ये होता है कि स्टोरी डिपार्टमेंट क्लोज कर देते बॉस एक दिन, और फिर सारे पोइट्स जा रहे थे और फिर उसे भी जाना पड़ा कि लॉयर भी स्टोरी डिपार्टमेंट का पार्ट माना गया था. Gemini Studios was the favorite haunt of poets like S.D.S. Yogia, Sango Subramaniam, Krishna Shastri, and Harindranath Chattopadhyay. It had an excellent mess which supplied good coffee at all times of the day and for most part of the night. तो like इनका जो था कि जेमिनी स्टूडियो वॉज अ फेवरेट हॉर्न, मतलब कि यहाँ पे वो सारे इकट्ठा होते थे, अपने आइडियाज़ डिस्कस करते थे, जैसे S.T.S. योगिया, संघो सुब्रमण्यम, कृष्ण शास्त्री, हरिन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय. तो इनका जो एक्सटेंड मैस था विच सप्लाइड गुड कॉफ़ी एट ऑल टाइम, मतलब हर वक्त अच्छी कॉफ़ी मिलती थी. इनकी जो मैस था, मैस मीन्स लगा कि प्लेस जहाँ पे खाना मतलब खाना पानी जो मिलता है, को यहाँ पे कॉफ़ी मिलती है. ठीक है. Those were the days when Congress rule meant prohibition, and meeting over a cup of coffee was rather satisfying entertainment. Bearing the office boys and a couple of clerks, everybody else at the studios radiated leisure, a prerequisite for poetry. Most of them wore khadi and worshipped Gandhiji, but beyond that, they had not the faintest appreciation for political thought of any kind. तो जो मोस्ट ऑफ द सब लोग खादी पहनते थे, गांधी जी की प्रार्थना करती थी. प्रार्थना मीन्स लाइक दे वैल्यू लाइक वर्शिपिंग द वैल्यूज ऑफ दैट पर्सन, सो इट्स लाइक वर्शिप्ड गांधी जी. ठीक है. दोस्तों ऐसा नहीं कि उनकी फ़ोटो सामने लगा दी ओम जय जगदीश हरे, ऐसा नहीं था. ठीक है. Those were the days when Congress rule meant prohibition. Meeting over a cup of was rather satisfying entertainment. Pairing the office boy and a couple of glass. वैसे तो studios radiated leisure, मतलब कि सब लोग ऐसा था कि कुछ आराम लेते थे, कॉफ़ी पीते थे. ठीक है. A prerequisite for poetry. Most of them wore खादी, सब लोग खादी पहनते थे, गांधी जी की वैल्यूज़ पे चलते थे. But beyond that, they any kind, naturally they were all had not the faintest appreciation for political thought of any kind. पर उन्हें पॉलिटिक्स से इतनी जानकारी नहीं थी, बस ये चीज़ है कि जो फॉलो करनी है बस करनी है. लिटरली दे वर ऑल एडवर्स टू द टर्म कम्युनिज्म. सब लोग जो टर्म कम्युनिज्म थे सब उसके विरोध में ही थे. कम्युनिस्ट वॉज अ गॉडलेस मैन, ही हैड नो फेलियर और कॉन्जुगल लव. और कम्युनिस्ट होता है कि जिसको कोई उनसे भगवान का भी डर नहीं है और उसे फैमिली की भी चिंता नहीं है. ही हैड नो कंपक्शन, उसे कोई भी कंपक्शन नहीं है लाइक पनिशमेंट अबाउट किलिंग हिज ओन पेरेंट्स. उसे कोई भी दुख दर्द कुछ नहीं है अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को मारने में. ही वॉज ऑलवेज आउट टू कॉज एंड स्प्रेड अनरेस्ट एंड वॉयलेंस. हमेशा से लाइक वो होता है ना दंगा फसाद among innocent and ignorant people. Such notions which prevailed everywhere else in South India at that time also naturally floated about vaguely about the khadi
क्लैट पोइट्स और जेमिनी स्टूडियोज, ऐसे ही जेमिनी स्टूडियो के जो पोइट्स हैं उन तक भी ये बात पहुंची। एविडेंस ऑफ इट वॉज सून फोर्थकमिंग एंड फ्रैंक बुचमैन्स मोरल रिआर्मेंट आर्मी। तब यहाँ पे एक आर्मी की बात की जाए कि जो हमारे जेमिनी स्टूडियो में आती है, ठीक है। सम 200 स्ट्रॉन्ग विजिटेड मद्रास sometime in 1952. They could not have had a warmer host in India than the Germany studio. So 1952 में एक मोरल रिआर्मेंट आर्मी आई थी फ्रैंक बुचमैन की। तो हुआ क्या था कि जब वो उसमें 200 लोग आए थे, उन्हें इंडिया में कोई और होस्ट करने के लिए मिला नहीं, तो वो जेमिनी स्टूडियो आ गए। दे वंट वेरी गुड एट द ट्रेपेज, वो जो होते हैं ना हॉरिजॉन्टल बार पे लटकने वाले, इसमें वो इतने अच्छे नहीं थे। देयर एक्वाइंटेंस विद एनिमल्स बस मान लिया देयर डिनर टेबल, और बस डिनर टेबल पे उन्हें दिखाई दिए उनके जो एनिमल्स साथी थे। बट दे प्रेजेंटेड 2 प्लेज इन मोस्ट प्रोफेशनल मैनर। बट उन्होंने जो 2 प्ले किए बहुत ही प्रोफेशनली किए, वो थे जोथम वैली और एक फॉरगेटन फैक्टर। ran several shows in मद्रास में बहुत चला along with other citizens of city। the Gemini family of 600 जो Gemini family of 600 की हो गई थी, saw the plays over and over again। the messages of plays were usually plain and simple homilies, but the sets and costumes were first rate। मद्रास एंड तमिल ड्रामा कम्युनिटी, तो ऐसा था कि उन्होंने बहुत ही अच्छे यूनिफॉर्म्स यूज़ किए थे, वो चीज़ मेन थी। बाकी प्ले तो थोड़ा प्लेन ही आइडियाज़, जो नॉर्मल आइडियाज़ तो वहीं हमारे डिपिक्ट करते हैं। तो हमारा उसमें ट्रेजर सर्कस था, फ्रैंक बुचमैन 2 प्ले, जोथम वैली, फॉरगेटन फैक्टर, 2 चीज़ वहाँ पे थी। अब यहाँ पे क्या है हमारे टेरिबली इम्प्रेस्ड एंड फॉर सम ईयर्स ऑलमोस्ट ऑल तमिल हैड द सेट ऑफ सनराइज इन द मैनर ऑफ द जोथम वैली विद अ डे sorry with a bare stage, a white background curtain, and a tune played on the flute. It was some years later that I learned that the MRA was a kind of counter movement to international communism, and the big bosses of Madras like Mr. Vasan simply played into their hands। तो एक्चुअली बाद में पता चला कि जो हमारा MRA था वो हमारे काउंटर मतलब कि अगेंस्ट मूवमेंट चलाया जाता है इंटरनेशनल कम्युनिज्म के, और तुम्हारे मिस्टर वसन ने अपना हाथ आराम से दे दिया था। So I am not sure, however, that this was indeed the case, for the unchangeable aspects of these big bosses and their enterprises remained the same। MRA ने और नो MRA उन्हें मतलब कोई फ़र्क इतना दिखा नहीं था उसके बाद। तो इंटरेस्टिंग कॉमेडी और नो इंटरेस्टिंग होता है। स्टाफ ऑफ जेमिनी स्टूडियोज हैड नाइस टाइम होस्टिंग 200 पीपल ऑफ ऑल द ह्यूज एंड साइज ऑफ एटलीस्ट 20 नेशनलिटीज़। मतलब 20 नेशनलिटीज़, इतने सारे नेशनलिटीज़ के बहुत सारे लंबे चौड़े ऐसे लोग आए थे, सबको उन्होंने होस्ट करके अच्छा लगा, मतलब कि माइंड फ्रेश हो गया। इट वाज सच अ चेंज फ्रॉम अनयूजुअल कलेक्शन ऑफ क्राउड प्लेयर्स वेटिंग टू बी स्लैप्ड विद द थिक लेयर्स ऑफ मेकअप एट द ऑफिस में। तो लाइक ऐसे क्राउड प्लेयर्स को छोड़ के पहले वो इतने ज़्यादा लोग आए थे। Few months later, the telephone lines of big bosses of Madras buzzed, and once again at Gemini Studio cleared a whole shooting stage to welcome another visitor। तो एक और visitor आ रहे थे हमारे जेमिनी स्टूडियो पे। ऑल दे सेड वाज दैट ही वाज अ पोएट फ्रॉम इंग्लैंड, और उनको बस इतना होता था कि कोई पोएट है हमारे इंग्लैंड से। द ओनली पोएट्स फ्रॉम इंग्लैंड द सिंपल जेमिनी स्टाफ न्यू द हार्ट ऑफ वर्ड्सवर्थ, और हमारे कौन से हो गए टेनीसन। द मोर लिटरेट वंस न्यू कीट्स एंड शेली एंड बायरन। ठीक है, ये हमारे इंग्लिश के पोइट्स के नेम है। तो लाइक सिर्फ इनके बारे में जेमिनी स्टूडियो में से कुछ लोग जानते थे, बाकी और किसी पोइट को नहीं जानते थे। अब वो नहीं जानते थे कि हाँ उनके यहाँ कौन सा आ रहा है, कौन से वाले आ रहे हैं। एंड 1 or 2 might have faintly come to know of someone by the name Eliot। तो हम कुछ नाम याद रखते हैं, जैसे कि कीट्स तो हमें पता है ना, जॉन कीट्स, वर्ड्सवर्थ हो गया, बायरन। ही इज़ नॉट अ पोइट, ही इज़ एन एडिटर। ठीक है, तो ऐसा कहा गया डेट्स वाई द बॉस इज गिविंग हिम ए बिग रिसेप्शन। इसलिए बॉस ने बिग रिसेप्शन भी दे दी, क्योंकि उसे पोइट नहीं कि बहुत ही बड़ी एडिटर है। वसन वॉज ऑल्सो द एडिटर ऑफ द पॉपुलर तमिल वीकली आनंदा विकातन की बहुत बड़ी लाइक एडिटर थी, जो एस वसन थे उस जेमिनी स्टूडियो के ओनर, जो हमने स्टार्टिंग में भी नाम पढ़ा। तो मिस्टर वसन, ठीक है। MRA ने किया था काउंटर मोमेंटो इंटरनेशनल, और आनंद विकेतन को एडिट किया था वसन ने। ठीक है, ये चीज़ हो गई हमारी। और एक है मैनचेस्टर गार्डन और लंदन टाइम्स। तो ही wasn't the editor of any of the known names the British publication Madras, that is those known of the Gemini studio। Since the top of the Hindu were taking the initiative, the surmise was that the poet was the editor of a daily। मतलब कि वो जो पोइट आ रहे थे वो कोई एडिटर ही थे डेली के, बट नॉट फ्रॉम द मैनचेस्टर गार्जियन और द लंदन टाइम्स। बट मैनचेस्टर गार्जियन और लंदन टाइम्स जो कि हमारे फेमस हैं न्यूज़पेपर्स हमारे वहाँ पे इंग्लैंड रीजन में, वहाँ उससे नहीं थे वो। तो मतलब इन शॉर्ट वो बहुत ही
अलग पोइट थे जिनके बारे में कोई नहीं जानता था. It was all that even the most well-informed among us known. At last, around 4 in the afternoon, तो जब 4 बजे आफ्टरनून में, तो poet for the editor or the editor arrived. He was a tall man, very English, very serious, and of course very unknown to all of us, battling with half a dozen pedestal fans on the shooting stage. The boss read out a long speech. It was obvious that he knows too new, precious little about the poet or the editor. The speech was all the most general terms, but here and there it was peppered with words like freedom and democracy. Then the poet spoke. तो उसकी बॉस ने पहले स्पीच दिया, तो उस बॉस को भी ज़्यादा नहीं पता था उसके बारे में, तो बस इधर उधर से फ्रीडम डेमोक्रेसी ऐसे वर्ड्स यूज़ करके अपनी स्पीच बनाई और दे दी बस. और सर क्या हमारे उसका पोएट की बारे में बोले थे, ही कुडंट हैव एड्रेस्ड ए मोर डेज्ड एंड अ साइलेंट ऑडियंस. नो वन न्यू व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट एंड हिज एसेंट डिफीटेड एनी अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट ही वाज सेइंग. तो पहली बार तो समझ में नहीं आता बोल क्या रहा है, उसके पास ऊपर से एसेंट, लाइक उसकी एसेंट इतनी इंग्लिश थी कि वहाँ को समझ नहीं पा रहा था. तो ऐसी बात थी. द होल थिंग लास्ट अबाउट एन आवर व्हेन द पोएट लेफ्ट एंड वी ऑल डिस्पर्ड इन अटर बेफुलमेंट. और जैसे ही पोएट गया, we were like too baffled. क्या बोल के गया ये? He was too English. What is an English point doing in a film studio which make Tamil films for the simplest sort of people? हम लोग तो इतनी कॉम्प्लेक्स तमिल फिल्म्स भी नहीं बताते जितनी तो हमने आज कॉम्प्लेक्स इंग्लिश सुन ली. तो लाइक द ऑथर वाज जस्ट वंडरिंग अबाउट दैट पॉइंट. People who okay, what were you doing? What is an English point doing? Okay, people whose lives at least afforded them the possibility of cultivating taste for English poetry. हमारे तो ऐसी लाइफ भी नहीं थी जो हम लोग अफोर्ड कर सकें इंग्लिश पोइट्री को. द पोइट लुक प्रेटी बेफल्ड. तो पोइट भी वहाँ बेफल्ड क्योंकि फॉर ही टू मस्ट हैव लेफ्ट फेल द शेयर इनकॉन्ग्रुइटी, क्योंकि वो नहीं समझ पाता था कि लोग क्या रिएक्ट करके जब वो ताली बजाना चाह रहा सोच रहे तो लोग ताली बजाएंगे, लोग शांति से सुन रहे हैं, जब ताली नहीं बजानी तब वो बजाने लग रहे हैं. तो ही वॉज टू बैफल्ड टू. ऑफ हिज टॉक अबाउट द थ्रिल्स एंड ट्रेवल्स ऑफ एन इंग्लिश पॉइंट, हिज विजिट रिमेन्ड एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री. और किसी को समझ में नहीं आया कि क्यों आया था वो, क्यों. द ग्रेट प्रोज राइटर्स ऑफ द वर्ल्ड मे नॉट एडमिटेड, but my conviction grows stronger day by day after that prose writing is not and cannot be the true pursuit of a genius. It is for the patient, persistent and persevering drudge with a heart so shrunken that nothing can break it. तो जो बड़े बड़े लाइक प्रोज लिखते हैं ना, तो वो कह सकते हैं ऐसे कि नहीं, हमें तो लगता है कि प्रोज राइटिंग बहुत ईजी है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें. पर मेरे अकॉर्डिंग prose writing is tough. It needs the person to be patient, persistent, persevering drudge with heart so shrunken so that nothing can break it. Rejection slips don't mean a thing to him. Like rejection, उसे कितना रिजेक्ट कर दीजिए लेकिन वो लिखता ही रहेगा अगर सिर्फ उसे प्रोज लिखना है. तो लाइक प्रोज राइटिंग इज लाइक अ वेरी नाइस थिंग एंड requires some effort according to the author. He at once sets about making a fresh copy of the long prose piece and sends it to another editor, enclosing postage for the return of the manuscript. It was for such people that the Hindu had published a tiny announcement in insignificant corner of an unimportant piece. तो इसलिए